A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the rejected Satan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Okay, people, we're gonna start today's session. It is going to be your conceptual class. Okay, people, I hope that you people can hear me clearly. Okay, Prakash Kumar, how are you? Sir, I am fine. And what about you? I'm also good, thank you, Prakash Kumar. It is going to be our conceptual class. Today, I'll teach you how we can write English, okay, how we can speak English properly, and how we can understand, okay, English language at a great extent. Okay, don't be worried. Okay, now, Habib Khan, how are you? Can you hear me properly? Habib Khan, how are you? Can you hear me properly? Yes, sir. Fine. You are audible, sir. Oh, good, good, good. Okay. Hasnan Sarwar, Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam, sir. Alhamdulillah. How do you do? How do you do? Okay. It is going to be a conceptual class. Okay. Yes, sir. Good. Okay. Now. Sanam Ali. Okay. Assalamu alaikum. We're gonna start the session. Salam. Good. Okay. Sanam Ali, you were asking about the certification for your scholarship, right? Yes, sir. Okay. As per rule of the institution, you cannot be provided with the certification unless you complete the course. Okay. When you have completed the course for 3 months, okay, your test will be conducted. After that, all over Pakistan, via TCS, your certificate or in the hard copy format, okay, will be delivered on your doorstep. लेकिन आपने कहा कि आपने चूंकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको हम ये सजेशन देंगे कि आप तकरीबन सिर्फ 1 माह का कोर्स मुकम्मल कीजिए। 1 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद इंस्टीट्यूशन आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा। ओके, सर्टिफिकेट इस बिहाफ पे जारी करेगा कि यू हैव टू मेक प्रॉमिस दैट यू विल कंप्लीट द कोर्स। ओके, यस, ऐसा ना हो सर्टिफिकेशन आपको दे दीजिए, आप कोर्स स्टार्ट लीव कर दे, चूंकि द सर्टिफिकेशन शोज दैट यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग, you have obtained a certificate in English proficiency course. Okay, we can help you and we want to help you, but you're supposed to complete the course, right? Okay, sir. Thank you. No problem. Okay, within 1 month you'll be provided, but you have to complete the course. Okay, now see, let's start. Okay, people, the topic we're gonna start. Okay, causative and non-causative sentences. Okay, it is a topic, okay, that has the sentences which are spoken a lot in English language, in Urdu language. ये वो जुमले हैं जो कि अंग्रेजी के अंदर बहुत ज्यादा बोले और लिखे जाते हैं. Okay, causative sentence. Okay, Hassan Sarwar, what's your qualification? What are you studying? Sir, I have studied MA English. I have recently cleared it, but I have no idea of grammar, honestly. Okay, no problem. Okay, that's why you have joined this course. I know. Okay, if you had non-English, okay, you wouldn't have joined us. अगर आपको अंग्रेजी आती होती आप हमें क्यों ज्वाइन करते? Okay, don't be worried. English trainers, okay, the people who obtain degrees in literature and linguistics are our students. Okay, don't be worried. ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, इसलिए बेफिक्र रहें. Okay, now causative sentence, non-causative sentence. Okay, causative sentence, a sentence in which we do not do anything on our own, but we receive the service. Causative sentence वो sentence होता है जिसमें हम खुद से कोई काम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सर्विस को रिसीव करते हैं. सर्विस को हम रिसीव करते हैं, इसको बोलते हैं causative sentence बोलते हैं. ठीक है, अब बोर्ड पे देखिएगा. हबीब खान, I'll talk to you a bit later. Okay, okay, now अंग्रेजी में 6 तरह के causative sentences होते हैं. आज हमने इंशाल्लाह 6 में से 4 पढ़ लेने. ठीक है, now the sentence number 1, okay, that is causative. Okay, it is definition क्या है? Definition ये है कि a sentence in which
a sentence in which we do not, a sentence in which we receive the service. Okay, we receive the service. A sentence in which we receive the service, okay, but we do not mention the performer. क्या कहा? एक ऐसा जुमला जिसमें हम कोई काम, कोई सर्विस रिसीव करते हैं, एक ऐसा जुमला जिसमें हम सर्विस रिसीव करते हैं लेकिन हम सर्विस देने वाले का जिक्र नहीं करते. मिसाल के तौर पे सनम के अलावा क्लास के अंदर सारे मर्द हजरात हैं, बॉयज हैं. हम बॉयज क्या करते हैं? हम मर्द हजरात हर महीने बाल कटवाते हैं, हर महीने बाल कटवाते हैं. तो ये जो सेंटेंस है कि हम हर महीने बाल कटवाते हैं, कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट यानी कि जो बंदा बाल कटवाता है, उमर हो, उस्मान हो, हसनैन हो, प्रकाश हो, सारा हो, यासिर हो, whoever, okay, receives the service, जो बंदा रिसीव करता है सर्विस को, okay, सब्जेक्ट. आफ्टर दैट गेट यहाँ पे क्या है? गेट यहाँ पर कॉस्टिव वर्ब है. जुमले के अंदर वजह पैदा करने के लिए यहाँ पर गेट अंग्रेजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. ओके, गेट के बाद क्या करेंगे? यहाँ हैव इस्तेमाल कर लीजिए. गेट या हैव की चॉइस है यहाँ पर. ओके, आफ्टर दैट वी यूज, ओके, आपने क्या कटवाया? आप बाल कटवाते हैं. वो जो चीज है जिस पे काम होता है वो समझेंगे. उसके बाद याद रखिएगा, आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाया है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर थर्ड फॉर्म को. द फॉर्म्स ऑफ वर्ब are the foundation of English language. Okay, if you do not practice forms of verb, it means you cannot be able to speak English at a great extent. अगर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छी अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे. you will always make mistakes. आप हमेशा गलतियां करेंगे आप. ओके, हमेशा आप गलतियां करते रहेंगे. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन. ओके, नीचे स्टूडेंट पोर्टल पे आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिस करवाई जाएंगी इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो. ओके, सब्जेक्ट प्लस गेट हैव समथिंग पास्ट पार्टिसिपल. जुमला ये है, मैं कहता हूं कि मैं बाल कटवाता हूं, हम बाल कटवाते हैं. सेंटेंस क्या बनेगा? कि we get the hair बाल. ओके, we get the hair कटवाना, कट, we get the hair cut, हम बाल कटवाते हैं. इसी तरह मैं जुमला बोलता हूं कि रात में मैं एक कप चाय बनवाता हूं. चाय बनवाना मैं खुद से नहीं बनाता, बीवी से बनवाता हूं, लेकिन बीवी का जिक्र नहीं कर रहा. डेफिनेशन क्या है? कि a sentence in which we receive the service, एक जुमला जिसमें हम सर्विस को रिसीव करते हैं बट वी डू नॉट मेंशन द परफॉर्मर की जिक्र नहीं करते परफॉर्मर. ओके, तो क्या है कि मैं बीवी से एक कप चाय बनवाता हूं लेकिन बीवी का जिक्र नहीं करना. मैं एक कप चाय बनवाता हूं, जुमला क्या बनेगा? कि आई गेट, क्या बनवाता हूं? एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, आई गेट अ कप ऑफ टी मेड. मैं कप चाय बनवाता हूं, आई गेट अ कप ऑफ टी मेड, मैं कप चाय बनवाता हूं. अब यहां देखें, मेक बनाना होता, थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड. अगर अब यहां पर बेस फॉर्म यूज करते हैं तो जुमले के अंदर गलती हो जाएगी. सेंटेंस के अंदर आपने गलती कर दी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने कोई काम करवाना होता है तो उसके लिए आपने क्या करना है? मेड यूज करना है, थर्ड फॉर्म. आपने मेक यूज नहीं करना, आपने मेकिंग यूज नहीं करना. इट्स गोइंग टू बी अ मिस्टेक, गलती हो जाएगी ये. सो आई गेट अ कप ऑफ टी मेड, मैं कप चाय बनवाता हूं. आई गेट अ कप ऑफ टी मेड, मैं कप चाय बनवाता हूं. अब इन दोनों जुमलों के अंदर देखें, a server open the mic and talk to me. Server open the mic and talk to me. हसनैन, Yes, sir. हसनैन मुझे ये बताएं, क्या जुमले के अंदर हमने परफॉर्मर का जिक्र किया? कौन चाय बनाता है? शेफ का जिक्र किया, शेफ का? No, sir. गुड. तो अब हमने जिक्र करना है कि मैं अपनी बीवी से कप चाय बनवाता हूं. जुमला दोहराएं. मैं अपनी बीवी से एक कप चाय बनवाता हूँ. हमने जुमले के अंदर हेयर ड्रेसर की बात नहीं किया. बोले क्या हम यासिर से बाल कटवाते हैं? किससे बाल कटवाते हैं? यासिर से. अब डेफिनेशन ये होगी, माइक को बंद कर लें. अब कॉस्टिव सेंटेंस नंबर 2 की डेफिनेशन ये होगी कि क्या होगी? कि अ सेंटेंस, ओके, अ सेंटेंस इन विच we receive the service. We receive the service. A sentence in which we receive the service. Okay.
a sentence in which we receive the service, and we also mention the performer. अब ये वो जुमला जिसके अंदर हम सर्विस रिसीव करते हैं और साथ साथ परफॉर्मर का जिक्र भी करते हैं। यानी कि मैंने कहा कि हम बाल कटवाते हैं, we get the hair cut। अब हम कहेंगे हम यासिर से बाल कटवाते हैं। मैंने कहा एक कप चाय मैं बनवाता हूं, I get a cup of tea made। मैं कप चाय बनवाता हूं, मैं कहता हूं मैं अपनी बीवी से बनवाता हूं। यहाँ पे ऑफ चॉइस है, यहाँ पे गेट की हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। I have, we have the hair cut। ओके ना। अब जब आपने परफॉर्मर का जिक्र करना है जुमले के अंदर कि काम किसने किया, तब अंग्रेज कहता है कि आपने जुमला ये बोलना है, और अंग्रेज ये जुमला बोलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, first of all subject, okay, after that get। now here we don't have any choice, we have to use just get के बाद क्या करेंगे, आपने यूज करना है, क्या यूज करना है, someone। ऊपर वाले जुमले के अंदर आपने समथिंग का जिक्र किया, लेकिन यहां पे आपने जिससे आपने परफॉर्मेंस ली है उसका जिक्र करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन्फिनिटिव यूज करना है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, ये सवाल है। इन्फिनिटिव मींस दैट टू ऐड टू प्लस बेस फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि बेस फॉर्म के टू गो, टू जंप, टू स्लिप, टू मेक के साथ पहली फॉर्म के साथ टू ऐड कर देने के बाद इन्फिनिटिव होता है। चलें आप लोगों की आसानी के लिए पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोर्ड पे लिख दूं ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। ओके ना। मिसाल के तौर पे काटना कट, ठीक है, लिखना राइट, बनाना make। Okay, now the second form of cut is cut, right, wrote, okay, make, made। now the third form, the past participle form of cut is cut, okay, write, wrote, right, second form wrote, write, wrote, written, write, wrote, written। okay, now make, made, तीनों फॉर्म लिख दी। चलें भी, अब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि क्या करना, टू लगा दो, टू कट, टू राइट, टू मेक। बात समझ आ गई। तो यानी कि बेस फॉर्म से पहले टू लगा दो, इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इसको इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, जब आपने परफॉर्मर का जिक्र करना है तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस गेट समवन प्लस इन्फिनिटिव, उसके बाद समथिंग का जिक्र करेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। तो याद रहे, क्या याद रहे कि वी हैव द हेयर कट, हम बाल कटवाते हैं। आई गेट कप ऑफ टी मेड, मैं कप चाय बनवाता हूं। अब मैंने बोलूंगा कि मैं अपनी बीवी से कप चाय बनवाता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा कि आई गेट के बाद परफॉर्मर का जिक्र है, किससे बनवाता हूं मैं, अपनी वाइफ से। आई गेट माई वाइफ, ओके, आई गेट माई वाइफ, क्या करवाता हूं, बनवाता हूं। तो बनाना चाहे टू मेक होता है, आई गेट माई वाइफ टू मेक, ओके, क्या बनवाता हूं, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, आई गेट माई वाइफ टू मेक अ कप ऑफ टी, मैं अपनी बीवी से कप चाय बनवाता हूं। आई गेट माई वाइफ टू मेक कप ऑफ टी। आर यू गेटिंग मी? ओके, अब मैंने कहा कि हम बाल कटवाते हैं, वी हैव द हेयर कट, किससे, यासिर से। यासिर क्या है, हेयर ड्रेसर है, हम यासिर से बाल कटवाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि वी गेट यासिर टू कट द हेयर। आर यू गेटिंग मी? ओके, ये देखें कि जब आपने जिक्र करना है परफॉर्मर का तो आपने कहना है कि आई गेट माई वाइफ टू मेक अ कप ऑफ टी। जब आपने परफॉर्मर का जिक्र नहीं करना तो बोलेंगे आई गेट अ कप ऑफ टी मेड। ओके, नाउ Naveed Ahmed, open the mic and talk to me. Yes. How have you been, man? Alhamdulillah, good. Okay, right now I have taught you two sentences. I'm gonna teach you third one. Okay, now पहले दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या फर्क है, मुझे बताएं, आपने क्या सीखा अभी तक, फर्क बताएं, हल्का सा फर्क क्या है। First one and second one. First one. In first one, the performer is not means important for us. Excellent, We do. excellent, good. And in second one, we want to mention the performer of the activity. Excellent. Prakash, open the mic and talk to me.
प्रकाश आप पूछते हैं उस्मान से, किससे पूछते हैं? Answer. हाँ, कि आप कंपनी में क्या काम करते हो, व्हाट डू यू डू इन द कंपनी। सवाल पूछे व्हाट डू यू डू इन द कंपनी। आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन द कंपनी। सवाल पूछे हैं प्रकाश, व्हाट डू यू डू इन द कंपनी। What did you? हाँ, उस्मान कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता हूं। क्या बोलता है वो? मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता हूं। क्या बोलता है वो? ओके, हसनैन यू ओपन द माइक एंड टॉक टू मी। Yes, sir. उस्मान ने क्या कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता हूं। क्या बोला उसने? मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता हूँ। क्या उस्मान ने डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करने वाले कंपनी के एम्प्लॉयज का जिक्र किया जुमले में? नहीं किया, ये नहीं किया। पॉजिटिव हो। वो कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाता हूँ। वो साइन किस चीज पे करवाता है? दीवारों पर। कहाँ पे साइन करवाता है वो? डॉक्यूमेंट्स पर। एक्सीलेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या जुमले का सब समथिंग है। वो क्या बोलेगा? आई गेट द डॉक्यूमेंट्स। रिपीट द सेंटेंस, आई गेट द डॉक्यूमेंट्स I get the documents signed. थर्ड फॉर्म signed. signed. I get the document signed. जुमला दोहराएं। I get the documents signed. Good. Now, Sanam Ali, open the mic and talk to me. Yes, sir. जुमला बोलें कि मैं अपना असाइनमेंट बनवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट डू योर असाइनमेंट ऑन योर ओन, ओके, यू सीक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। तो मुझे बोलें कि मैं असाइनमेंट बनवाती हूँ। मैं असाइनमेंट बनवाती हूँ। हाँ, नाउ स्पीक इन I get- इंग्लिश। आई गेट The assignment. I get the assignment. The Excellent. assignment I get the assignment made. made. I get the assignment made. Okay. Always remember, okay, we don't use made with assignment. Assignment हमेशा अंग्रेजी में do होता है, उर्दू को फॉलो नहीं करें, done आएगा। Okay, so I get the assignment done. मैं assignment करवाती हूँ, I get the assignment done. How to speak the sentence? Repeat after. I get the assignment done. Excellent. I get the assignment done. Good. Okay, now, Simon, open the mic and talk to me. Okay, Simon, open the mic and talk to me. Okay, now, उस्मान ने कहा कि I get the document signed. चलें भी, अब आप जुमला बोलें कि उस्मान कहता है कि मैं एम्प्लॉयज से डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूं। तो जुमला कैसे बनाएंगे? बना के दिखाएं। Saima, can you hear me? Why don't you answer me? Okay, now, Habib Khan, open the mic and talk to me. Yes, sir. Okay, now, जुमला बनाएं। उस्मान कहता है कि मैं एम्प्लॉयज से दस्तखत करवाता हूं डॉक्यूमेंट्स पर। Yes, sir. So the Usman get No. the employees No, to make. मैं उस्मान बोलता है कि मैं एम्प्लॉयज से दस्तखत करवाता हूं। तो बोले I. Acha. I get Usman. Good. Yes. I get Usman. I get नहीं, Usman. उस्मान कहता है एम्प्लॉयज। I get the employees. I get. अच्छा. Sorry, sir. उर्दू में दोबारा बोलो। मैं एम्प्लॉयज से डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता हूं। ये उस्मान कह रहे हैं। उस्मान कह रहे हैं I get. हाँ। उस्मान get. नहीं यार, I get। उस्मान कह रहा है कि मैं करवाता हूं। I get. हाँ, I get the employees. I get the employees to make assignment. To sign the documents. To sign documents. Okay, to sign the documents. Okay, I get the employees to sign the documents. To documents, मैं एम्प्लॉय से डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूं। अब सेंटेंस ये बनाएं, जुमला ये बनाइए कि अब बोलें, आप बोलें कि मैं नवीद से असाइनमेंट करवाता हूं। I get Naveed. Excellent. Yes, I get Naveed I get Naveed to complete assignment. to do the assignment.
to do the assignment. हम मुकम्मल करने की बात तो मुकम्मल बोलेंगे, कंप्लीट करने की बात आएगी तो करना बोलेंगे। ओके, आई गेट नवीद टू डू द असाइनमेंट, मैं नवीद से असाइनमेंट करवाता हूँ। आर यू गेटिंग मी? Okay. ओके, नाउ इमरान अली, ओपन द माइक एंड टॉक टू मी। यस सर। इमरान अली, चलें भाई, मैं आपके सामने दो जुमले बोलूंगा, दोनों में फर्क बताना आपने। उर्दू में बोलूंगा, दोनों उर्दू में फर्क बताइएगा, ठीक है? मैं क्या हूं? चलें भाई, आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मैं अब्बू से दरखास्त लिखवाता हूं। जुमला दोहराएं। मैं अब्बू से दरख्वास्त लिखवाता हूँ। और यहां पर जैसे कि हबीब खान आपके क्लासमेट हैं, अब बोलें कि मैं हबीब से दरखास्त लिखवाता हूं। बोलें। मैं हबीब से दरख्वास्त लिखवाता हूँ। क्या दोनों जुमलों के अंदर फर्क होगा कॉन्टेक्स्ट में? मैं नवीद से दरखास्त लिखवाता हूं, मैं अब्बू से दरखास्त लिखवाता हूं, कोई फर्क नहीं। फर्क होगा नहीं होगा? फर्क नहीं है सर। फर्क है। अब्बू से जब दरखास्त लिखवाएंगे तो अब्बू को आप फोर्स नहीं कर सकते। अब्बू से इस आप सेंस में, रिस्पेक्ट के सेंस से कह रहे हैं तो अलग बिल्कुल बात है। बिल्कुल रिस्पेक्ट के सेंस से, मैं उर्दू को महसूस करने की बात, रियलाइज करने की बात कर रहा हूं, मैं सेंस करने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर रिस्पेक्ट के सेंस के अंदर बात करें, क्लासमेट से बंदा दोस्ताना रवैया अपना लेता है, राइट और नॉट? तो जब आपने कहना है कि मैं नवीद से मैं नवीद से दरखास्त लिखवाता हूं, तो आपके लफ्जों का चुनाव अलग होगा। जब आप कहेंगे कि मैं अपने वालिद से दरखास्त लिखवाता हूं, लफ्जों का चुनाव अलग होगा। तो क्या चुनाव होगा? याद रखिएगा कि वैन एवर वी टॉक अबाउट आवर एल्डर्स, जब आपने अपने एल्डर्स की बात करनी है तो आपने लफ्जों का जो इस्तेमाल करना है, जुमला यही रहेगा कि मैं दरखास्त लिखवाता हूं। अगर आपने क्लासमेट की बात करनी है और अगर आपने अपने किसी बड़े की बात करनी है तो लफ्जों में तब्दीली आ जाएगी। ओके ओके, नाउ अ सेंटेंस, a sentence in which we ask, हम कहते हैं, we ask someone honorably एहतरामन, okay, to do something okay for us। जब हम किसी से एहतरामन कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम लफ्जों का इंतखाब कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ओके, आफ्टर दैट वी यूज हैव। यहाँ पे हैव का मतलब क्या है कि वी आर शोइंग, ओके, वी आर शोइंग ऑनर, वी आर शोइंग रिस्पेक्ट, ओके, इन अवर सेंटेंस। जब आप मुझे कहते हैं कि सर मैं अपने अब्बू से दरखास्त लिखवाता हूं, तो आपके लफ्जों के अंदर एहतराम भरा हुआ होगा कि वालिद साहब की बात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मैं नवीद से लिखवाता हूं, तो नवीद आपका क्लासमेट है, तो दोस्ताना अंदाज का एक उनसर नजर आएगा। तो जुमला कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद लगाएंगे समवन, जिससे आप दरखास्त लिखवाते हैं, समवन। अब समवन के बाद आपने जब कभी भी सेंटेंस नंबर 3 बोलना है, इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट इन योर सेंटेंस, ओके, वी ऑलवेज यूज व्हाट? जस्ट बेस फॉर्म। आफ्टर दैट समथिंग का जिक्र करेंगे, ठीक है? अब यहां देखिए, अब फर्क देखिएगा। ये जो डेफिनेशन है नंबर 2, अ सेंटेंस इन विच वी रिसीव द सर्विस, ओके, या कॉर्डियली या इन अ फ्रेंडली मैनर आएगा। इन आ, पहले मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपको फर्क समझा सकूं। इन अ फ्रेंडली मैनर, बात समझ आ रही है? जब आपने फ्रेंडली मैनर के अंदर बात करनी तो ये जुमला बोलेंगे कि सेंटेंस इन विच वी रिसीव द सर्विस इन अ फ्रेंडली मैनर एंड वी आल्सो मेंशन द परफॉर्मर। तब आपने कहना है, आपने क्या कहना है कि मैं नवीद से दरखास्त लिखवाता हूं, तब बोलोगे कि आई गेट नवीद टू राइट एन एप्लीकेशन। जब आप कहेंगे कि मैं अपने वालिद मोहतरम से दरखास्त लिखवाता हूं, तो आप बोलेंगे कि I have my father write an application। मैं अपने वालिद साहब से दरखास्त लिखवाता हूं, आप बोलेंगे कि I have my father write an application। Are you getting me? जब आप कहेंगे कि मैं नवीद से दरखास्त लिखवाता हूं, नवीद आपके बड़े भाई नहीं है। हाँ, अगर आपके बड़े भाई हैं तो बोलेंगे I have नवीद write an application। अगर आपके क्लासमेट हैं तो आप बोलेंगे कि I get Naveed to write I get Naveed to write I get Naveed to write an application। ये फर्क है दोनों जुमलों के अंदर।
ओके, वन मोर सेंटेंस। अब जुमला देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रकाश कुमार, नवीद, हसनैन, हबीब, इमरान, कमर, रशीद, ओके, यू पीपल लिव इन अ हॉस्टल। आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, आप हॉस्टल में रहते एक साथ पढ़ते हैं। तो प्रकाश कहता है कि मैं इमरान से कपड़े इस्त्री करवाता हूं। अब चूंकि इमरान क्या है, प्रकाश का क्लासमेट है, तो दोस्तों के अंदर ये चलता है कि कभी आप उसका काम कर रहे हैं और वो आपका काम कर रहा है। तो प्रकाश कहता है कि मैं इमरान से कपड़े इस्त्री करवाता हूं और कभी कभार मैं भी उसके कपड़े इस्त्री कर देता हूं। सेंटेंस ये होगा कि मैं इमरान से कपड़े इस्त्री करवाता हूं। आप बोलोगे कि आई गेट इमरान टू आयरन करना, इस्त्री करना, आयरन माई क्लॉथ्स। लेकिन जब आप प्रकाश कहते हैं कि आई गेट इमरान टू आयरन माई क्लॉथ्स, ओके, तो ये जुमला, अगर प्रकाश कहते हैं कि मैं अपनी वालदा से कपड़े इस्त्री करवाता हूं, वालदा, योर मदर इज ऑलवेज ऑनरेबल, ओके, तो जब आप मुझे बताते हैं कि सर मैं अपनी वालदा से कपड़े इस्त्री करवाता हूं, तो आपने गेट नहीं बोलना। शी इज नॉट योर फ्रेंड, ओके, शी इज योर मदर, यू आर सपोज्ड टू शो ऑनर, रिस्पेक्ट इन द सेंटेंस, ओके, देन यू स्पीक द सेंटेंस लाइक दिस। आपने कहना है, आप कहेंगे, अंग्रेज इस तरह जुमला बोलेगा कि आई हैव माई मदर आयरन। अब यहां पे टू लगा देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर यहां पर इस जुमले में टू नहीं आता, ओके। आई हैव माई मदर आयरन द क्लॉथ्स, मैं अपनी वालदा से कपड़े इस्त्री करवाता हूं। आई हैव माई मदर आयरन द क्लॉथ्स। आर यू गेटिंग मी? ओके, नाउ सनम अली। सर इसकी जो यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाते, ये क्या इसकी लॉजिक क्या है, कि रिस्पेक्ट की वजह से टू क्यों नहीं लगाते? थोड़ा इसका सा लैंग्वेज के अंदर लॉजिक नहीं होता, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, हर चीज फिक्स्ड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैव का जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर टू नहीं आता, सिर्फ अंग्रेज बेस फॉर्म इस्तेमाल करता है, तो हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ओके, आर यू गेटिंग मी? यस। गुड, ओके। नाउ हबीब खान, हसनैन सरवर, इमरान अली, नवीद अहमद, प्रकाश कुमार, रशीद आलम, सनम अली। मैं बोर्ड पे आपके सामने एक जुमला लिखूंगा, एक जुमला, आपने उस एक जुमले को इन 3 क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर क्या करना है, बदलना है आपने। पहले एक जुमला मैं करूंगा, फिर आपने मुझे करके दिखाना है, और मैं आपके एक्सरसाइज अभी बैठ के चेक करूंगा आप, ठीक है। कैसे जुमला बनाना आपने, आप देख से जूम एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन आ रहा है, तो चैट के ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, सेंटेंस को आपने टाइप करना है, आपने मुझे सेंड करना है, डायरेक्ट टू होस्ट सेंड करना है, नॉट टू एवरीवन। एवरीवन कैन कॉपी, कैन चीट, लोग चीट कर सकते हैं, आपने डायरेक्ट होस्ट को भेजना है। मैं चेक कर बताऊंगा आपने जुमला सही बनाया गलत बनाया, पहले मैं बनाऊंगा, ठीक है। देखें, अच्छा टीचर वो होता है जो पहले खुद काम करके दिखाए, ठीक है। सो पहले मैं जुमला बनाऊंगा, फिर आप बनाएंगे, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, ओके। नाउ एक्सरसाइज क्या है, फॉर एग्जांपल अली कार वॉश। इसका क्या सेंस बनेगा कि अली कार धुलवाता है, पहली बात, पहला सेंटेंस। वी डोंट वांट टू मेंशन द सर्विसमैन का जिक्र नहीं करना, तो जुमला क्या बनेगा कि अली कार धुलवाता है, अली उस्मान से कार धुलवाता है, अली अपने बड़े भाई से कार धुलवाता है। तीनों सेंस हो गए, तो जुमला क्या बनेगा कि अली गेट्स अपनी कार धुलवाता है, तो द कार स्पेसिफिक हो जाएगी। अली गेट्स द कार वॉश्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, वॉश्ड। अली कार धुलवाता है, अली गेट्स द कार वॉश्ड। ओके, अली कार धुलवाता है, अली गेट्स द कार वॉश्ड। हाँ, अली उस्मान से कार वॉश करता है, उस्मान इसका क्या है, दोस्त है, क्योंकि उस्मान इससे अली से कार धुलवाता है, तो अली उस्मान से कार धुलवा लेता है इन अ फ्रेंडली मैनर। तो जुमला क्या बनेगा कि अली गेट्स उस्मान, ओके, टू वॉश द कार। बस मेरी, अली अपने बड़े भाई से कार धुलवाता है, ओके। सो अली है तो हैज आ जाएगा, आए तो हैव आएगा। अली हैज हिज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, ओके। अली हैज हिज एल्डर ब्रदर वॉश द car, okay। That's how you have to make 3 sentences, and you'll share
via Zoom chat. Okay, now I'm going to write on the board the information you have to arrange into 3 sentences, right? कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर आपने एक्सेप्ट करके दिखानी, मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूं. Okay, now you have to arrange we, okay, we paint रंग करना, paint room. Okay, now you have to arrange this piece of information into 3 sentences. Let's start. You have 5 minutes. 5 minutes आपके पास. Hurry up. People, you have 2 or 3 minutes, okay, to make these sentences. Prakash has answered. Excellent. 100% correct sentence. Okay, good. Let's make 2 more sentences. Good. People, hurry up. Yeah. People are responding me. Good. Hurry up. Sir, I have completed. Please check. Okay, you have completed. Okay, I'm gonna check. Give me just 1 minute. Let rest Okay. people make the sentences, then we check all together. Okay. Good. Everyone has made the sentences. Good. Good. Everyone is making the sentences. The lecture is also being recorded. Whatever we have written, whatever we are making, the conversation is being recorded. Then you can watch later on. Now I have written. It is saved. It will be shared with the student. The whiteboard. Okay, now, people, I'm gonna check the exercise, okay? First of all, Prakash, open the mic and talk to me. Yes, sir. Prakash, I'm gonna read out your sentences, okay? जुमले सुनिएगा. First sentence is absolutely right, okay? We get the room painted. हम कमरे में रंग करवाते हैं. हम खुद तो नहीं करते. यकीनन हम सर्विस लेते हैं. We get the room painted. Excellent. जो भी काम करवाना होता है थर्ड फॉर्म में लगा देंगे हरकत उसकी. हरकत क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी. We get the room painted. Excellent. Okay. Next sentence you made. I get painter to paint the room. Excellent. अब इसके अंदर हमने पेंट करने वाले का जिक्र किया तो जुमले के अंदर अल्फाजों में तब्दीली आ गई कि मैं पेंटर से कमरे में रंग करवाता हूं. I get painter to paint the room. Excellent. Now, third sentence you made.
वी हैव माई एल्डर ब्रदर। अब जब भी हम बड़े भाई से कमरे में रंग करवाते बड़ा भाई मौजूद होता है, ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर ये है कि जब बड़े भाई से काम करवाने की बात करनी तो ग्रामर में तब्दील हो जाएगी, छोटे से काम करने की बात हो तो ग्रामर तब्दील हो जाएगी। ओके, अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज। उर्दू में फीलिंग्स, अंग्रेजी में फीलिंग्स नहीं आती। फीलिंग्स तब आएगी जब आप अंग्रेजी के वर्ड्स ऑर्डर को समझोगे। अंग्रेज बड़े भाई के लिए जुमले के अंदर तब्दीली ले आएगा और छोटे भाई के लिए तब्दीली लेकर आएगा, अपने नौकर के लिए तब्दीली लेकर आएगा। जुमला एक ही है कि मैं अली से कमरे में रंग करवाता हूं। अगर अली उसका सर्वेंट है तो जुमला तब्दील, अगर अली बड़ा भाई है तो जुमला तब्दील, अली दोस्त तो जुमला तब्दील। अंग्रेज अगर कहता है कि मैं अपने बड़े भाई से क्या करता हूं, मैं अपने बड़े भाई से क्या करता हूं, कुछ लिखवाता हूं मैं, ठीक है। अली अंग्रेज कहता है कि मैं अपने बड़े भाई से क्या करता हूं, लिखवाता हूं। अपने बड़े भाई से मैं क्या करता हूं, दरखास्त लिखवाता हूं, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो लेट मी राइट ऑन द बोर्ड, वो क्या कहेगा कि आई हैव माई elder brother, I have my elder brother write an application। मैं अपने बड़े भाई से दरखास्त लिखवाता हूं, ठीक है। I have my elder brother write an application, इसमें रिस्पेक्ट शो कर रहा है वो। अगर अंग्रेज कहता है कि मैं अपने क्लासमेट से दरखास्त लिखवाता हूं, क्लासमेट क्या था, आपका फ्रेंड होता है, तो उसमें ऑनर शो करें ना करें, आप फ्रेंडली मैनरिज्म शो कर सकते हो। आप बोलोगे कि आई गेट माई classmate to write an application। क्लासमेट के लिए गेट इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर आप फ्रेंडली मैनरिज्म शो करते हैं, आपके दोस्ताना अंदाज। अगर आपने ये कहना है कि मैं अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय आपके माता है तो उसको ऑर्डर देंगे काम करेगा, वरना आप उसकी तनख्वाह काट लोगे आप, तो वो आपके लिए ऑनरेबल नहीं है, बल्कि आपका एम्प्लॉय है वो। तो आप क्या कहोगे कि मैं अपने एम्प्लॉय से लिखवाता हूं, आप बोलोगे आई मेक यूज होगा। मेक का मतलब क्या है कि नो ऑनर, ओके, नो फ्रेंडली बिहेवियर, इट मीन्स ऑर्डर। ओके, यू कैन कंपेल योर एम्प्लॉय। आप बोलोगे आई मेक माई एम्प्लॉय write an application। यानी कि the people who say we are unable to realize English, it means they have not learned it। okay, जो लोग कहते हैं हमें अंग्रेजी फील नहीं होती, उन्होंने अंग्रेजी को सीखा हुआ नहीं है। अंग्रेजी को सीखने वाला अंग्रेजी को फील भी करेगा, as you people can realize। okay, now प्रकाश का तीसरा जुमला क्या था? The third sentence made by Prakash is we have my। Prakash, open the mic। Yes, sir. Open it. हम के लिए अपना आएगा, हम अपने बड़े भाई से, तो वी के लिए अवर आएगा, अवर, ओ यूर अवर। वी हैव अवर, नॉट माई। अगर आई होता तो आई हैव माई एल्डर ब्रदर। हम अपने, वी हैव आवर एल्डर ब्रदर पेंट द रूम। एक्सीलेंट, गुड, कीप इट अप। ओके, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने भी लगेंगे। ओके, नेक्स्ट रशीद आलम, ओपन द माइक। ओके सर। रशीद आलम, ओके, रिमेंबर पहला सेंटेंस क्या बनेगा कि वी गेट के बाद रूम आएगा, चीज का जिक्र करेंगे। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखें। गेट के बाद चीज का जिक्र करेंगे, ये देखें। ओके सर, चीज आएगा, चीज। When we get the room painted, we get the room painted। ओके, जुमला सही कर लें। उसके बाद दूसरा जुमला आपने बनाया है, ओके, ओके, अली गेट्स उस्मान टू, अली गेट्स आएगा, अली के बाद हमेशा एस लगाएंगे यहाँ पर नाम के बाद। बोले अली गेट्स उस्मान टू, दानी आएगा, टू पेंट द रूम। बोले टू पेंट द रूम। जब एक्सरसाइज करेंगे कल और चेक होगी एक्सेप्ट की गलतियां निकलेगी तो आपको सीखने को मिलेगा। गुड, क्या बनाया आपने? बिल्कुल। अली हैज हिज लगाएं, लड़का है ना, हिज, लड़की है तो हर। अली हैज हिज एल्डर ब्रदर, बोले अली हैज एल्डर ब्रदर। अली हैज हिज एल्डर ब्रदर, जुमला दोहराएं। अली हैज हिज एल्डर ब्रदर
पेंट इन द रूम, एक्सीलेंट, जुमला बिल्कुल दुरुस्त है आपका, से हिज लगाए यहाँ पे, गुड, ओके, यहाँ पे आपने क्या की, जुमले के अंदर रिस्पेक्ट शो की है, एक्सीलेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट पर्सन, Naveed, open the mic and talk to me. Yes, sir. Good. We get the room painted, excellent, absolutely right sentence. हम कमरे में रंग करवाते हैं. We get the painter to paint the room, marvelous, बिल्कुल 100% दुरुस्त जुमला है. We have the painter paint the room, excellent, okay, कि हम पेंटर से कमरे में रंग करवाते हैं, या पेंटर आपके लिए मोजिज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पेंटर क्या है, इन अ फ्रेंडली मैनर यू आर टॉकिंग टू हिम, यहाँ पे आपने पेंटर का जिक्र ही नहीं किया, एक्सीलेंट। हसनैन, सर्वर, ओपन द माइक एंड टॉक टू मी। Yes, sir. Server, as I mentioned, okay, when we don't mention the doer, the first sentence, we always use the past participle third form, painted third form लगाएंगे, ठीक है। तो जुमला क्या बनेगा, जैसे आपने बनाया जुमला बिल्कुल सही, लेकिन एंड में आपने गलती कर दी कि Painted. यस, नंबर 1, we get the room painted, ed लगाएंगे, painted, बोले we get the room painted, We get the room painted. एक्सीलेंट। जैसे हम बाल कटवाते हैं, we get our hair cut, ठीक है। बच्चे नाखून कटवाते हैं अपनी अम्मा से, बच्चे नाखून कटवाते हैं, the children get their nails cut, इस तरह जुमला बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपने बनाया, we get Ahmed to paint the room, excellent, this sentence is absolutely right, okay, we get Ahmed to paint the room, हम अहमद से कमरे में रंग करवाते हैं, एक्सीलेंट। अहमद आपका दोस्त है, तो गेट अहमद टू का मतलब क्या है कि इन अ फ्रेंडली मैनर, ओके। नाउ नंबर 3, वी हैव मेड अ मिस्टेक, द मिस्टेक वाज मेड बाय प्रकाश, यू हैव आल्सो मेड, आपने की है। यहाँ पे हसनैन क्या है, वी, क्या है, वी है। तो हम अपने, मैं मेरे, आई हैव माई ब्रदर, वी हैव अवर ब्रदर, क्या आएगा, Our brother. we have our brother paint the room, हम अपने भाई से कमरे में करवाते हैं, the brother is always honorable, so use have, okay, good performance. Now the next one, Kamar, open the mic and talk to me. Yes, sir. First, we get the room painted, excellent, you have got the concept, okay, keep it up. Next, Yeah. we get Ali to paint the room, excellent, okay, it means that in this sentence Ali is your classmate, okay, last year Yes. you Uh, painted, Third last one, year, basically, sir, in third one, I consider that the painter is a old person. That's why I give him respect. okay, good. We get Ali to paint the room, good. We have the painter, जैसे कमर ने कहा कि in front, for me a painter is an old person, so we need to show the respect, okay, so we have the painter paint the room, excellent, okay। ये बड़े अंग्रेजी बड़ी आसान जुबान है, okay, मुनहसिर है कि पढ़ने पढ़ाने वाला कौन है, okay, कॉन्सेप्ट क्लियर होना Yes, sir. चाहिए। you will be able to speak English just like Urdu, okay, उर्दू की तरह बोलने लगेंगे, but it will need diagnostic, के तहकीक चाहिए कि ग्रामर कैसे काम करती है, good। Yes, sir. Next one is Just need Sanam Ali, to clear the concept. Sanam Ali, open the mic. Yes, sir. We get room painted, excellent, हम कमरे में रंग करवाते हैं, good। We get room painted, good। We get Ali to paint the room, इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या कहना चाहा, मुझे बताएं। अली आपका दोस्त है या एल्डर ब्रदर है, सनम आपका दोस्त है ना, As a friend, एज अ फ्रेंड, ओके। वी गेट अली टू पेंट द रूम, हम अली से कमरे में रंग करवाते हैं, ठीक है। we have the same mistake you made, okay, that other people make, okay। we के लिए हमेशा, अभी प्रोनाउन का टॉपिक शुरू करें उसमें गलतियां आपकी हल हो जाएंगी कि we के लिए our आएगा। we have our uncle paint the room, हम अंकल से कमरे में रंग करवाते हैं, यानी कि अंकल इज ऑलवेज ऑनरेबल, बड़े हैं, मोजिज हैं, तो अंग्रेज एक इज्जत अफजाई के लिए हैव इस्तेमाल करता है कि वी हैव, जुमला वही है कि एक कमरे में रंग करवाते हैं, लेकिन बड़े से तो हैव आएगा। वी हैव आवर अंकल पेंट द रूम, एक्सीलेंट। Who's left? Awan has done, हर बंदे ने कर लिया, ओके पीपल, दैट फॉर टुडे, ये आज के इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने 3 तरह के मुख्तलिफ सेंटेंस बोलना सीखे जो कि पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है कि आ सेंटेंस इन विच वी डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन ऑन अवर ओन बट वी रिसीव द सर्विस, एक जुमला जिसमें हम खुद से कोई काम नहीं करते बल्कि काम करवाते हैं।
बच्चा हमेशा अपने वालिदैन से दरखास्त लिखवाता है, खुद नहीं लिखता, लिखवाता है। तो हम खुद बाल नहीं काटते, बल्कि नाई भी बाल कटवाता है, ऐसा ही है। तो मैं जुमला बनवाता हूँ, बनाता नहीं हूँ, बनवाता हूँ मैं। सो आई गेट अ सेंटेंस मेड, मैं जुमला बनवाता हूँ। मैं जुमला अपने स्टूडेंट से बनवाता हूँ, आई गेट माई स्टूडेंट्स टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है, मैं जुमला अपने टीचर से बनवाता हूँ। टीचर्स हमेशा ऑनरेबल होंगे तो क्या बोलेंगे, आई हैव माई टीचर्स मेक द सेंटेंस। सो until now any question? अभी तक के लेक्चर में कोई सवाल? हबीब खान, हसनैन सरवर, इमरान अली, नवीद अहमद, प्रकाश कुमार, कमर, रशीद आलम, सनम अली, एनी क्वेश्चन अभी तक के लेक्चर में? No, sir. नो क्वेश्चन, गुड। हसनैन सर सरवर, यस। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, वो पोर्टल की एक्सेस के लिए आपसे रिक्वेस्ट की हाँ थी कि बिल्कुल, उसका पोर्टल अभी आपको पासवर्ड शेयर वो। किया जाएगा, आपका पोर्टल तैयार हो चुका, अभी आपको लिंक शेयर किया जा रहा है। ओके जी जी। और सर ये बता दें सर, क्लासेस की जो तरतीब है वो नेक्स्ट क्लास आपकी टुमारो होगी या डे आफ्टर टुमारो? और कल हमारी स्पीकिंग की होगी, ये कल जरा आपकी क्लियर कर स्पोकन क्लास दीजिए। होगी, हफ्ते में 3 दिन स्पोकन है, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, मंडे। फ्राइडे। I'll teach you. Your conceptual class will be held. Okay. ओके Tuesday, Thursday, and Saturday, Sadhanan Paul will teach you. Okay, your spoken teacher. ओके स्पोकन क्लास का मकसद ये है कि बोलना, अंग्रेजी नहीं आएगी जब तक बोलेंगे नहीं। ओके, यू हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन, जो दे दिया गया उस पर तैयारी करनी है और बोलना है आपने। ओके, तैयारी करने के लिए यूट्यूब खोल लिया करें, गूगल पे कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लें, पॉइंट्स बना के हर पॉइंट पे 2-2 3-3 मिनट बोलें, आप खुद ब खुद बोलने लगेंगे। और जुमला कैसे बोलना है इस क्लास के अंदर सीख रहे हैं। ओके, हसनैन Okay, सरवर, sir. एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Causative, non-causative, and third one, इसका नाम क्या है सर? देखें, कॉस्टिव सेंटेंस 6 किस्म के अंग्रेजी में, कितने किस्म के हैं? अच्छा, 6 किस्म। हर अंग्रेजी में, उर्दू में हर 6 किस्म के होते हैं। कॉस्टिव सेंटेंस जिसमें काम करवाते हैं आप, नॉन कॉस्टिव जिसमें आप खुद काम करते हैं। मैं कमरे में रंग करवाता हूं, आई गेट माई रूम पेंटेड, जुमला दोहराएं। I get my room painted. अगर मैं बोलूं मैं कमरे में रंग करता हूं खुद से, ये नॉन कॉस्टिव हो जाएगा। आई पेंट माई रूम क्या हो जाएगा? I paint my room. ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये आता है, मजीद सीखेंगे। लेकिन आज जो सीखा ना, किसी से कोई काम करवाना, आई गेट माई रूम पेंटेड, मैं कमरे में रंग करवाता हूँ। 6 तरह के जुमले होते हैं, 3 पढ़ा दिए, 3 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आई मीन दैट डे आफ्टर टुमारो, परसों। हसनैन, दैट्स क्लियर? Inshallah, sir. And sir, Okay. besides this grammar class, because okay, I'll discuss it personally with you. हसनैन, ट्राई टू स्पीक लाउडर, लाउडर बोले, थोड़ा माइक को अपने मुंह के पास करें। Sir, आवाज आ रही? अब आपकी आवाज क्लियर है, बोले। Sir, I was saying कि writing practice भी होगी sir, हर written चीज देखें, assignments. ये प्रोफिशिएंसी मास्टर कोर्स है, ठीक है। मास्टर कोर्स वो कोर्स होता है जाके हर तरह के कोर्स को कवर अप करे। आप इदारे की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहाँ पे स्पोकन कोर्स अलग से लिखा हुआ है, राइटिंग कोर्स अलग से लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो प्रोफिशिएंसी कोर्स है, ये आपके ऑल एरियाज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज गोइंग टू कवर इंशाल्लाह। You can become a Inshallah. content writer if you complete the course. Okay, it's a condition. You learn for 1 month and you leave the course, you won't be able to, okay, write anything properly, because a language is a game of words. Okay, the more words you have, the more you speak. Now this course will teach you how you can arrange the words in a sentence. जुमले में लफ्जों, जितने लफ्ज अभी मैंने बोर्ड पे लिखे, आपको पहले से पता थे गेट क्या होता, पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि गेट अंग्रेजी के अंदर कॉस्टिव वर्ब है, जुमले के अंदर कोस पैदा करते हुए जब हमने कहना है कि मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट होगा, ये नहीं पता था आपको। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है sir. तो लैंग्वेज के अंदर क्या है, वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स ऑर्डर आपको ये कोर्स मुकम्मल तौर पे सिखा देगा इंशाल्लाह। Inshallah. गुड, ओके। Thank कंसिस्टेंसी, you sir. perseverance is the key to success. मुश्किल मिजाजी क्या है, कामयाबी की कुंजी है। So you have to be in the class. Okay, क्लास के अंदर आपने रहना है। Okay, now anyone else, any question? नवीद अहमद, इमरान अली, प्रकाश कुमार, any question? हबीब खान, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे आप? सर ये स्लाइड से जो है शेयर करेंगे ना हमारे साथ सर, जी, व्हाट्सएप पे या रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे मिलेगी इंशाल्लाह। तरीकेकार ये है कि स्टूडेंट पोर्टल का भी लिंक आपको सेंड करेंगे। वेब डेवलपर जो है हमारा, वो कल की डेट में आएगा, तो आज का लेक्चर कल अपलोड किया जाएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर कल जनाब आएंगे, अपलोड करेंगे वो। ओके,
लेकिन अभी व्हाट्सएप पे आपको शेयर करते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें आप. ओके ओके. नाउ एनीवन एल्स, एनी क्वेरी क्वेश्चन? नवीद अहमद, कमर, रशीद आलम, सनम अली, एनी क्वेरी क्वेश्चन? No, sir, everything. Everything is clear. Yes, sir. Okay, people, now I'll see you tomorrow. Okay. अब कल आपकी स्पोकन क्लास से टॉपिक आपको रात में दे दिया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है. और कल इसकी क्लास नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आपने एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज के अंदर आपने जुमले बनाने भी हैं, जुमले बोलने भी हैं आपने, दोनों तरह. ओके. नाउ सी यू टुमारो. टेक केयर.